Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about BFM Module A, Unit 3, which is all about correspondent banking and NRI banking in India. Okay. पिछले दो सेशन जहाँ पे हमने अभी तक आपका we already done with exchange rate and forex business in India and LRS and other remittance facilities for individuals. Okay, so today we will talk about correspondent banking and NRI accounts. So where we have different type of accounts like exchange earners, foreign currency account, Nostro, Vostro, Loro account, mirror account, NRE, NRO, FCNR, SNRR accounts. So these are the course content. So let's have a look about these particular things. So basic introduction, then we have correspondent banking, Nostro, Vostro and Loro accounts. Electronic mode of transmission where we have SWIFT, CHIPS, CHAPS and RTGS. NRI banking, NRI account. Then we have facilities for NRI, advances to non-resident against NRD, so that is non-resident deposits. Then housing loan to non-resident Indians. Okay, so this is generally your course content which are part of your Unit 3 BFM module E. So let's start the discussion. So first thing, we have the basic introduction about the and your correspondent banking. Okay, so whenever we talk about correspondent banking, so it's a banking it's a banking channels or banking methods with the help of other countries. Okay, so suppose that there is let's say, let's take an example of SBI. Okay, so it is not feasible for SBI to open their branches all over the world. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ब्रांचेस हर जगह खोलेंगे सो इट इन्वॉल्व कॉस्ट और अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है, तो एसबीआई जिसकी बहुत सारी कंट्रीज आपका जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, बट देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वी हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, सो अब देखो, सपोज दैट देर इज अ कस्टमर ऑफ एसबीआई. ठीक है, एक एसबीआई का कस्टमर आपका जिसको इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपका कोई ट्रांजेक्शन करना है. ठीक है, सपोज दैट SBI does not have any branch in this particular country. यहाँ पे SBI का कोई खुद का ब्रांच आपका नहीं है. ठीक है, so to facilitate this particular customer, what SBI do, SBI ने क्या किया आपका, suppose that this is the country X. ठीक है, so this is the country X जहाँ पे उसने वहाँ के कोई ABC बैंक आपका. ठीक है, so suppose that SBI maintain their account with ABC बैंक in their local currency. ठीक है, so यहाँ की local currency के अंदर, and through this particular account, basically through this particular bank accounts which is known as Nostro account. ठीक है, so SBI account with this ABC bank is generally known as Nostro account. ठीक है, so with this Nostro account, what SBI will do, SBI will transact this particular entry. ठीक है, तो आपका ये जो पर्सन ए है इसकी जो ट्रांजेक्शन है इसको वो अपने खुद के ब्रांच ना होके बल्कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग की तरह आपका ये जो एबीसी बैंक है इसके थ्रू उसको आपका कंडक्ट करेगा. तो देखो क्या होता है, एक मतलब अगर हम हर कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन करते हैं, इट इज़ नॉट अ फिजिबल डिसीजन क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है तो वो मीट अप नहीं होगा. तो उसके लिए हमने आपका करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का चैनल, जहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू SBI विल कंडक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस. सिमिलरली आपका इसको हम लोग बोलते हैं आपका आर मनी विद यू. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई आपका फॉरेन बैंक, सपोज दैट दिस एबीसी बैंक, इसका आपका इंडिया में कोई अकाउंट नहीं है. ठीक है, सो सपोज दैट एबीसी बैंक का आपका कोई इंडिया में आपका ब्रांच नहीं है. ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ब्रांच इन इंडिया. सो व्हाट दे विल डू, दे विल मेंटेन एन अकाउंट विद एसबीआई. इन्होंने एसबीआई के साथ एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है इन इंडियन रूपी. सो दिस इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट. ठीक है, और आपका एबीसी बैंक का विद एसबीआई विच दैट अकाउंट इज जनरली नोन एज वोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट के नाम से. ठीक है, एंड इट इज रुपी डोमिनेटेड अकाउंट. ठीक है, ये आपका अकाउंट किस में होगा, आईएनआर के अंदर. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स which is managed by foreign banks with Indian banks to facilitate their home countries basically जो भी customers वहाँ के हैं उनको facilitate करने के लिए this will help us और help them to do the transaction. okay, तो ये आपका दो accounts. ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे अगर आप facilities की बात करते हैं तो fund transfer,
क्लियरिंग सिस्टम, आपका सिक्योरिटी सेल परचेज, ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आपका जो कहीं ना कहीं आपके जो नोस्ट्रो वोस्ट्रो या लोरो अकाउंट से उनके थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एंड basically these all are generally part of correspondent banking. What is loro account? So loro account is suppose that PNB, Punjab National Bank, जिसका आपका कोई let's say they do not have their account with in country X, they do not have any branch, ठीक है, इनका खुद का कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। सो अब ना ही इनका कोई नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल अप्रोच टू एसबीआई एंड उनके जो भी कस्टमर्स आपके हैं उन कस्टमर्स को आपका फैसिलिटेट करेंगे विद एसबीआई नोस्ट्रो अकाउंट, जो कि आपका एबीसी बैंक के साथ है। तो ऐसे आपके एक और अकाउंट होता है मिरर अकाउंट, ठीक है। मिरर अकाउंट इज बेसिकली इट इज अ रेप्लिका ऑफ योर नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। सो मिरर अकाउंट आपका जनरली क्या हो गया, जो आपके नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो इन्हीं ट्रांजेक्शन्स का हम लोग आपका काइंड ऑफ बीआरएस मेंटेन कर रहे होते हैं, किसमें, मिरर अकाउंट के अंदर आपका, ठीक है। तो बेसिक आपका जो एरियाज हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज आपकी हैं, ठीक है, और इसके पीछे का रीजन या अदर्स जो हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। So a correspondent bank is a financial institution that provides services to another one, usually in another country. It acts as an intermediary or agent, facilitating wire transfer, conducting businesses transactions, accepting deposit, and gathering documents on behalf of another bank. जैसे for SBI it was ABC Bank, or for ABC Bank it was in India it was SBI, ठीक है। सो अलग अलग करेंसीज के अंदर जो इसको मेंटेन करके चल रहे होते हैं। द अकाउंट हेल्ड बिटवीन करस्पॉन्डेंट बैंक एंड द बैंक टू विच दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आर रेफर्ड टू एज nostro and vostro account. Domestic bank can serve their international clients and gain access to foreign financial market by using correspondent banking, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बेसिक सा आपका है। Now why we need correspondent banking? So international trade is hugely important in today's world. Nearly every single corporation and the person has global expansion aspirations for their operation, but this is not feasible without banking facilities. Similarly, it is impractical for each bank to establish a branch everywhere, ठीक है, जैसे हमने आपका एसबीआई का एग्जांपल लिया था, ठीक है। बिकॉज ब्रांच ओपनिंग जिसके साथ बहुत सारी कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो रेगुलेटरी कॉस्ट हो या फिर आपका जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग कॉस्ट आपका हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपका एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप किया, दैट इज नोन एज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। सो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग विच प्रोवाइड दीज पर्टिकुलर सर्विसेज, जैसे आपका फंड ट्रांसफर है, सेटलमेंट है, आपका चेक क्लियरिंग है, ठीक है, इसके अलावा वायर ट्रांसफर है, या फिर आपका करेंसी एक्सचेंज आपका। तो ऐसे जो भी आपके फॉरेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं, जो हम लोग यूजुअली ब्रांचेस के थ्रू कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारी ब्रांच नहीं है, सो हम उस नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर फंड्स मैनेज करके रख रहे हैं, विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट्स वी आर डूइंग दोस पर्टिकुलर अकाउंट। अब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, जैसे एक आपके पास है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑथराइज डीलर्स के द्वारा इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है, दे जनरली मेंटेन दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स विद सम अदर कंट्रीज बैंक एंड बेसिकली जो बार बार उनको आपका फॉरेक्स एक्सचेंज ना करना पड़े अदर्स, जिसके लिए इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है, ठीक है। सो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट इज एन अकाउंट मेंटेन इन फॉरेन करेंसी। Authorized dealers category 1 bank authorized to deal in foreign exchanges, they generally use this particular account to do the transactions। देखो डेली बेसिस पे उनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं, तो उसके लिए अपने जो कस्टमर्स उनको फैसिलिटेट करने के लिए दे जनरली मेंटेन दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स विद फॉरेन बैंक्स, जिससे उन ट्रांजेक्शन्स को आपका आसानी से किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा तीन अकाउंट आपका जो आपने बहुत बार सुनोगे, दो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वन इज नोस्ट्रो, अनदर वन इज वोस्ट्रो। नोस्ट्रो अकाउंट इज आर मनी विद यू, जैसे एसबीआई का अकाउंट विद एबीसी बैंक इन कंट्री एक्स, ठीक है, इन देयर लोकल करेंसी। वोस्ट्रो अकाउंट इज योर मनी विद अस, सो एबीसी बैंक अकाउंट विद एसबीआई in domestic currency INR, ठीक है। एंड लोरो अकाउंट इज देयर मनी विद देम, ठीक है। तो पीएनबी अकाउंट विद एसबीआई to facilitate their customers in country X with ABC बैंक, ठीक है, थ्रू ABC बैंक। तो ये आपका जो रहेंगे, ठीक है।
सो अगर हम लोग बात करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट का, ठीक है, सो इट इज डोमेस्टिक बैंक आपका, ठीक है, जैसे एसबीआई अकाउंट विद आपका एबीसी बैंक इन यूएस, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ की कंट्री के अंदर आपका, ठीक है, इन डॉलर, ये किस में होगा, आपका डॉलर अकाउंट होगा, ठीक है, सो आर मनी विद यू, और वी आर मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट इन यूएस डॉलर, ठीक है, टू फैसिलिटेट आर डोमेस्टिक कस्टमर्स, जो भी एग्जिस्टिंग या अपकमिंग है, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, योर मनी विद अस, एबीसी बैंक अकाउंट विद एसबीआई इन इंडियन करेंसी आईएनआर, ठीक है। लोरो अकाउंट इज समथिंग वेयर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है, पीएनबी, सपोज दैट पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नहीं है कंट्री एक्स के अंदर, सो दे डू दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ एसबीआई's नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट आपका जो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। So a bank foreign currency account maintained by the domestic bank in a foreign country and in the home currency of the country, जैसे आपका डॉलर के अंदर, एबीसी वाज फ्रॉम यूएस, तो यूएस डॉलर के अंदर जो मेंटेन होगा। वोस्ट्रो अकाउंट, द लोकल करेंसी अकाउंट मींस रुपी डोमिनेटेड अकाउंट्स आपका, ठीक है, मेंटेन बाय फॉरेन बैंक्स और ब्रांचेस इन इंडिया, जैसे एबीसी का विद एसबीआई, ठीक है। लोरो अकाउंट, it is an account wherein a bank remit funds in foreign currency to another bank for credit to accounts of the third bank आपका, ठीक है, जैसे पीएनबी, एसबीआई एंड थर्ड बैंक इज एबीसी बैंक आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके बुक के भी जो डेफिनेशन है वो सेम आपका उसी रो में आपको मिलेंगे, ठीक है। आई शेयर दिस पीडीएफ, तो आप वहां से भी इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे नोस्ट्रो अकाउंट आपका, अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक in home country with the bank in host country, it means our account with you, so example SBI account with आपका सिटी बैंक न्यूयॉर्क इन डॉलर, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट इज अ नॉन रेजिडेंट बैंक मेंटेनिंग एन अकाउंट विद होम कंट्री, जैसे आपका सपोज दैट, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योर अकाउंट विद अस, सो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विद एसबीआई इन मुंबई इन रूपी। लोरो अकाउंट इज, इट रेफर अकाउंट ऑफ अनदर बैंक, देयर मनी विद देम, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे सिटी बैंक रेफरिंग टू रूपी अकाउंट्स ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस, जैसे हमने पीएनबी एसबीआई का एग्जांपल लिया था, वैसे ही वहां से भी हो सकता है, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, देन आपका एसबीआई। मिरर अकाउंट आपका क्या होता है, ठीक है, while a bank maintain nostro account with foreign banks mostly in foreign currency, it has to keep a track of the account in the own books too. This is a reflection or shadow of the nostro account. The entries in the mirror account are used for the reconciliation of the entries in the nostro account. The mirror account is maintained in two currencies, one in which the foreign currency जैसे dollar and another one is home currency which is rupee in our case. तो ये आपके चार टाइप ऑफ अकाउंट्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, बहुत बेसिक है आपका, ठीक है। और ये फीचर्स आपका आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इसके बीच में, ठीक है। और इनका मतलब जो अप्लाइड वर्जन आपका है, जो एग्जामिनेशन में आपको टेस्ट किया जाएगा। सो अगर हम लोग बात करें सर्विसेज का, तो कुछ सर्विसेज जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग आपका इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइजिंग मींस आपका जो बेसिकली जो सेलर कंट्री आपका सेलर्स बैंक, ठीक है, दे कैन बिकम द सेलर्स बैंक, ठीक है। ओपनिंग बैंक हु ओपन द एलसी ऑन द बिहाफ ऑफ योर एप्लीकेंट्स, ठीक है, जो भी आपका इंपोर्टर है उसके बिहाफ पे आपका ओपनिंग बैंक होता है। देन एडवाइजिंग इन नोमिनेटेड बैंक इज फ्रॉम द सेलर्स कंट्री, जो एक्सपोर्टर है वहां से, तो उसकी तरह काम कर सकते हैं ये, ठीक है। और ये एडवाइजिंग नोमिनेटेड, इनको हम लोग पढ़ेंगे विद द एक यूनिट हमारा है जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट डेडिकेटेड यूनिट है, ठीक है। सो अगला आपका एलसी कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट आपका हो सकता है, ठीक है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस के लिए काम कर सकते हैं। इशुएंस ऑफ गारंटी, बिड बॉन्ड्स और परफॉर्मेंसेस एक्सेट्रा। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट, custodial services, trade referrals and credit reports in foreign parties, services related to investment of overnight surplus funds, short-term deposit, other funds raising services like bonds, ADR, GDRs,
training and seminars on various topic or on latest developments. Okay, so these are some major functions apart from the previous one, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट, फंड ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, आपका इसके अलावा जो भी हमने एरियाज आपका डिस्कस किए थे वो उनके अलावा आपका, ठीक है। तो ये आपका करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, हाफ मार्क मतलब वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। दूसरा आपका आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स, तो जिसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं आपका, ठीक है। तो इसमें से कुछ टूल जो आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट है, सो वी विल गो थ्रू दीस पर्टिकुलर वन बाय वन। स्विफ्ट आप लोगों ने सुना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चिप्स, चाप्स, फेडवाइड, टारगेट्स, सो दीज आर द टूल्स। बेसिकली ये आपका मैसेजिंग टूल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन आपका होता है, खासकर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, आपका फॉरेन रेमिटेंसेस जब आपकी होती हैं, ठीक है, तो उनको उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना और मैसेजेस डिलीवर करना, वो ट्रेड रिलेटेड हो या अदर्स आपका, ठीक है, तो वो काम करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा स्विफ्ट, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इट्स अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जिसके सबसे ज्यादा मेंबर कंट्रीज या मेंबर आपके जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, ठीक है। ये जनरली आपका छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन, बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन, उनको सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपका कंडक्ट करने में हेल्प करता है, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो इसके अलावा जैसे चिप्स है आपका अमेरिका से, फेडवायर अमेरिका से, चाप्स आपका यूके से, ये सब क्या है, जनरली दे जनरली फोकस ऑन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, ठीक है। उनका जनरली मोटिव क्या है, पैसा कमाना, बट दिस इज फॉर ऑल, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्विफ्ट, ठीक है। सो स्विफ्ट आपका जैसे जॉन डोई आपका जैसे ओरिजिनेटिंग कस्टमर आपका है, ठीक है। सो इसने आपका एक किसी फॉरेक्स से आपका ट्रेडिंग करवाया, ठीक है, एंड दिस इट इज आपका इंडसइंड बैंक के अंदर आता है। देन MT-103 जो पेमेंट मैसेज है वो आपका रिलीज होगा टू द रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, क्योंकि कस्टमर कहाँ से है, कनाडा से, ठीक है। देन आपका न्यू MT-103 पेमेंट मैसेज टू सिटी बैंक कनाडा, जिसमें आपका अकाउंट है किसका, जो भी बेनिफिशियरी है, देन दे पास ऑन टू दिस, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोसेसिंग आपकी होती है, या जो इस दौरान जो मैसेजिंग आपकी होती है, वेरिफिकेशन एंड मैसेजिंग, दैट इज जनरली डन बाय द स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली स्विफ्ट, जितने भी अदर ये सारे आपके हैं, ठीक है। So, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication is a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transactions for its member countries or members, ठीक है, institutions. SWIFT is the fastest and most secure mode of transmission of financial messaging between bank and institutions. Customer can send money from any part of the world through SWIFT. It is the most popular mode of money transfer in the world. To facilitate remittances through SWIFT, bank has correspondent banking relationship with all major bank in the world, ठीक है। तो यहाँ पे भी correspondent banking के इस्तेमाल करते हुए हम लोग आपका ये ट्रांजेक्शन, या इवन जो आपके ब्रांचेस हैं उनके थ्रू भी आपका जो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग आपका जैसे एक टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, IFSC, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसे विद इन कंट्री आपका जो रेमिटेंसेस होते हैं, तो जब भी हम आप फंड ट्रांसफर होते हैं, तो जब भी हम लोग आपका किसी पेई को ऐड कर रहे होते हैं, सो फॉर वेरिफिकेशन पर्पस वी विल बी रिक्वायरिंग दैट IFSC कोड, ठीक है। वैसे ही आपका सेम यहाँ पे भी वी हैव स्विफ्ट BIC कोड, बैंक आइडेंटिफायर कोड, विच इज अगेन 8 और 11 डिजिट कोड। जैसे IFSC हमारा 11 डिजिट कोड होता है, ये आपका 8 और 11। वाई 8 और 11, ठीक है, 8 कैरेक्टर आर मैंडेटरी, जो 3 कैरेक्टर है दे आर ऑप्शनल, बट मोस्ट ऑफ टाइम यूल सी अगर आप बैंक्स के कोड को देखेंगे, सो दे आर ऑलवेज 11 डिजिट कोड, ठीक है। सो स्विफ्ट वर्क बाय असाइनिंग ईच मेंबर इंस्टीट्यूशन अ यूनिक ID code which is known as BIC member for identifies the bank name and country and city and branch code, तो जिसमें फर्स्ट 4 डिजिट आपका बैंक नेम जैसे SBIN, ठीक है, देन आपका कंट्री कोड जैसे इंडिया IN, ठीक है, सिटी कोड आपका सपोज दैट मुंबई MM, एंड देन आपका ब्रांच कोड, ठीक है, इट कैन बी लाइक जैसे लास्ट 3 डिजिट आपका 1 2 3, ऐसा कुछ भी आपको कोड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट 4 कैरेक्टर विच इज आपका इंस्टीट्यूट कोड, जैसे SBI का हमने एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे एक बैंक है यूनिक्रेडिट बैंक का, सो इट इज UNCR। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर इज कंट्री कोड, जिसमें आपका क्या आएगा, जैसे इटली का बैंक है तो IT, इंडिया का आपका IN। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर आपका दी लोकेशन और सिटी कोड, जैसे मिलान है तो MN,
MM है यहाँ का कोड, तो जैसे मुंबई भी MM आपका नेम, या DU दिल्ली के लिए. सो लास्ट 3 कैरेक्टर ऑप्शनल बट ऑर्गेनाइजेशन यूज देम टू असाइन कोड टू इंडिविजुअल ब्रांचेस. ठीक है, तो किस ब्रांच से ट्रांजेक्शन हुई है वो. ठीक है, सो BIC कोड आपका जो कि अलॉट किया जाएगा किसके द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा. आपका जो भी मेंबर उसके हैं या जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको आपका, ठीक है, फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस. ठीक है, तो जब ट्रांजेक्शन्स आपके होंगे थ्रू दैट पर्टिकुलर कोड ओनली, बैंक स्विफ्ट विल आइडेंटिफाई और क्रॉस वेरीफाई दोज पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपके लिए किसका, साउथ इंडियन बैंक का. सो यू कैन सी हियर आल्सो. ठीक है, साउथ इंडियन बैंक आपका किस तरीके से आपका SOIN, साउथ इंडियन बैंक, IN इज योर आपका नेशन कोड, 55 इज योर आपका ब्रांच को, आपका 55 वाज द आप क्या था आपका सिटी कोड, एंड देन लास्ट 3 इज योर ब्रांच कोड. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो आपके ये कोड्स आपको सिस्टम देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो स्विफ्ट बेसिकली इनको इस्तेमाल करता है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, एंड दीज कोड आर गेट इशूड बाय द स्विफ्ट ओनली, राइट. So Swift provide the following services over a secured network. तो क्या क्या सर्विसेज आपका इसमें आती हैं, तो सारे एरियाज आपका, जैसे मैसेजिंग सोल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट्स. ठीक है, जो नॉर्मल रेमिटेंसेस हो रहे हैं वो. सो इंटर बैंक पेमेंट, कॉर्पोरेट सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंसेस, thereby mitigating operational and compliance risk. Trade finance messaging solution whereby bank benefit from the efficiency and reliability of global standard messaging and electronic matching across the spectrum of trade and supply chain. जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे for LC we have आपका जैसे दैट इज कोड. ठीक है, UIC कोड आपका 600 जो आपके लगते हैं. ठीक है, सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ दिस वन. ठीक है, सिक्योरिटीज आपका UCP 600 आपका. ठीक है, so securities आपका messages, standard and solution for the secured execution of confirmation, clearing and settlement across the transaction. जैसे कोई अगर आप ADR GDR या अदर्स कोई भी सिक्योरिटी बाय सेल हो रहा है. फॉरेक्स एंड ट्रेजरी आपका messages to facilitate foreign exchange and treasury messages including third party access to CLS and SWIFT confirmation. Okay, so these are the core areas or important functions which are generally performed by the SWIFT organization. ठीक है, अब ऐसे ही जैसे आपका SWIFT है, वैसे ही कुछ और फेमस है जिसमें चिप्स, चाप्स एंड फेडवायर्स आते हैं. ठीक है, जो आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट है. यूजुअली वो आपको यही पूछता है कि कहाँ से हैं और किस मेथड पे काम करता है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखें. सो चिप्स इज आपका जो यूएस का है. ठीक है, सो ये आपका यूएस से है. सो एक यूएस की कंपनी है चिप्स आपका, जो मेजरली आपका जो कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन है उनको फोकस करती है, जो बल्क में अमाउंट होते हैं उन पे. ठीक है, सो क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, so the clearing house interbank payment system is a primary clearing house in US for large banking transactions. Chips work on netting basis and credit access transactions, provide both clearing and settlement services to its customers banks. ठीक है, so there are two steps in processing funds. First one is clearing and settlement. Clearing is the transfer and confirmation of information between the payer और आपका पे. ठीक है, तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. ठीक है, जैसे हम लोग सेटलमेंट वर्ड को बहुत पहले भी बहुत बार भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज क्लियरिंग एंड सेकंड वन इज सेटलमेंट. इज काइंड ऑफ जहाँ पे बोथ अकाउंट्स इज गेटिंग जो डेबिट होना वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है सेम टाइम पे आपका. ठीक है, सो सेटलमेंट इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पेयर and financial institution, the payee financial institution. ठीक है, and the payee financial institution. Settlement discharge the obligation of payer financial institution to the payer financial institution and with respect to payment order. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं ना, किसको ट्रांसफर करते हैं, so this is the part जहाँ पे हम लोग आपका that verification वाला चीज हो रहा है, and here that transaction get executed. ठीक है, जहाँ पे जिसका अकाउंट डेबिट होना था और जिसका अकाउंट क्रेडिट होना था, that will be part of your settlement system. ठीक है, so how chips work, तो इसमें आपका कुछ इस तरीके से जो एरियाज है, बट इसका रिक्वायरमेंट आपका नहीं है. अगर आप देखेंगे भी, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर PDF. सो सिंपल आपका जो सीक्वेंस है दैट इज जनरली गिवन इन दिस पर्टिकुलर. अगला हमारे पास है चाप्स. चाप्स इज a system which is developed from by the UK. ठीक है,
सो आपका यूके का ये सिस्टम है आपका, ठीक है। सो क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, जैसे चिप्स आपका है वैसे ही चाप्स भी आपका काम करता है। इसका भी टारगेट आपके जो बल्क ट्रांजेक्शन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। सो चाप्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सेटलमेंट, रिस्क फ्री एंड इररिवोकेबल ट्रांजेक्शंस। जैसे आपके किस में होते हैं, आपका आरटीजीएस में होते हैं। बोथ आर वर्क ऑन इररिवोकेबल बेसिस, ठीक है। तो जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन एक बार हो गया, लाइक अगर वो मतलब सब कुछ डिटेल सही है, या तो सेम टाइम में वो क्रेडिट हो जाएगा या फिर सेम टाइम में आपका डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर ओवर 30 डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड 5000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मेक चाप्स पेमेंट्स through one of the direct participants. Responsibility for CHAPS system transferred to Bank of England in November 2017 आपका, ठीक है। तो इसका जो ओनरशिप है या इसकी जो इसको टेक केयर किया जाता है, दैट इज बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड राइट नाउ। So financial institution and some of the largest businesses use CHAPS to settle money market and foreign exchange transactions. So जिससे वो आपका टाइमली और जल्दी बेसिस पे हो जाए, और जो क्लियरिंग का टाइमिंग है वो आपका कम हो जाए, ठीक है। So corporate use CHAP for high value and time sensitive payments such as supplier or a payment of taxes, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने एक चीज समझी, एक पॉइंट यहाँ पे आपका मेंशन था कहीं पे, तो ठीक है। सो सॉरी, आपका इट इज इररिवोकेबल पेमेंट्स, दैट मींस एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया सो उसको आपका रोका नहीं जा सकता, ठीक है। दैट इज द वन। चिप्स आप दोनों ही सेम मेथड पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे आरटीजीएस का सिस्टम काम करता है ना, कि आपका अगर वेरिफिकेशन करेगा सही है तो सेम टाइम पे आपका मतलब जो ग्रॉस बेसिस पे आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही यहाँ पे भी वन टू वन सेटलमेंट्स काइंड ऑफ जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल may use CHAPS to buy high value items such as car or pay deposit for the houses, but usually these are generally used by the organizations, ठीक है। अगला है आपका फेडवायर, जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, दी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा आपका स्टार्ट किया गया फेडवायर आपका, ठीक है। सो ये इसका आपका फेडवायर्स का जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, सिंपल एज दैट, जैसे ये लोग आपके काम करते हैं वैसे ही। So Federal Reserve Bank provide the Fedwire Fund services, a real-time gross settlement system that enable participants to initiate funds transfer that are immediate, final and irrevocable once it's proceeds, ठीक है। तो सेम चीज आपका जैसे चिप्स चाप्स का, बट ये क्या है, नहीं लाइक जैसे हमारा जो स्विफ्ट है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के द्वारा, दैट वर्क एज अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो सबसे सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क ये, अब जैसे होता है ना कि एक उसमें कॉम्पिटिटर्स काइंड ऑफ आपका, ये सब स्विफ्ट के कॉम्पिटिटर्स काइंड ऑफ, ठीक है, जो टारगेट करें आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को, और जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है उनको फैसिलिटेट करने में हेल्प करें, ठीक है। तो depository institution and certain other financial institutions that hold an account with a Federal Reserve Bank are eligible to participate in the Fedwire Fund Reserve System, ठीक है। तो ये आपका, अब अगली जो चीज आती है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और जो आपका है, पहला था करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, अब दूसरा हमारे पास है एनआरआई बैंकिंग, ठीक है। सो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो आपके हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए वी हैव सम बैंकिंग फैसिलिटीज, जिसमें आपने बहुत बार एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर एंड एसएनआरआर अकाउंट्स, ये चार अकाउंट्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उनकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, या आपका कहाँ से कहाँ रेमिटेंसेस हो सकते हैं। जैसे बहुत बार पूछा था कि जैसे देयर इज अ प्रोविजन कि एनआरओ अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट्स में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि दोनों रूपी अकाउंट्स हैं। एनआरओ अकाउंट जिसमें उसकी लोकल अर्निंग हो रही है जैसे रेंटल इनकम एंड अदर्स, एसएनआरआर अकाउंट्स एनआरआई का कोई बिजनेस इंटरेस्ट, कोई बिजनेस हो इंडिया में कर रहा है, वहां पे भी इंडिया में आपका, ठीक है। सो दोनों ही आपका टैक्सेबल होंगे इंडिया के अंदर। एनआरई अकाउंट्स, एनआरई एंड एफसीएनआर से अकाउंट ट्रांसफर हो सकते हैं, फंड ट्रांसफर हो सकते हैं किसमें, आपका एसएनआरआर अकाउंट्स के अंदर फॉर बिजनेस पर्पसेस, बट एनआरओ से नहीं हो सकते। एनआरई और एफसीएनआर के ऊपर जो टैक्सेस होंगे दैट विल बी इन दी होम कंट्री जहां पे वो अभी रह रहा है। तो ये सारे प्रोविजन छोटे छोटे लाइनर्स या अदर्स जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए समझते हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आपका रेजिडेंट और एनआरआई, इनके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होते क्या है, ठीक है। सो एनआरआई बैंकिंग, इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जिसके माता पिता दादा दादी इंडियंस थे, बट अभी आप जन्म से किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो या अदर्स, तो उनके लिए भी
you will have to different banking and investment needs. Since you are residing abroad, most of your income and saving will be in foreign denominations like dollar, आपका euros and etc. As such, you might need an account that would suit to your requirements also. ठीक है? So in India there are three type of accounts majorly for the individuals, and for individuals who have business interest we have one another account, that is आपका SNRR अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए हाईलाइट करूं क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है. सो NRE अकाउंट, वी हैव NRO अकाउंट्स एंड वी हैव FCNR अकाउंट्स. ठीक है. सो ये तीन अकाउंट्स आपका जो बहुत बार आपने देखे होंगे, बट उनसे पहले आपका NRI का डेफिनेशन या जो अदर एरियाज हैं उनको आपका डिस्कस करते हैं. सो प्लीज पे योर अटेंशन. सो द मीनिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन need to be understand both from the point of view of Income Tax Act 1961 and आपका फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब हम अगर इनकम बेसिस पे करें तो इनकम टैक्स एक्ट को भी फॉलो करना होगा, और फेमा एक्ट की आपका जो फॉरेक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, तो दो एक्ट आप करें. सो सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 define a non-resident Indian based on the number of days a person stay outside India. ठीक है. तो NRI कौन होगा कि मतलब सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जहां पे बोला गया कि अगर एक रेजिडेंट इंडियन आपका अगर इतने दिन से ज्यादा आपका इंडिया से बाहर रहता है या विद इन इतने दिन आपका इंडिया में रहता है, तो कब वो रेजिडेंट होगा, कब आपका नॉन रेजिडेंट होगा. ठीक है. तो उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आपका बनाई जाएगी. ठीक है. सो जैसे रेजिडेंट कौन होंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज. ठीक है. ये आपका सेक्शन 6, ये डेफिनेशन किसके हिसाब से, सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. ठीक है. रेजिडेंट कौन होंगे, वो आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका 182 डेज आपका रहा है. ठीक है. सो इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सॉरी. ठीक है. अब जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर इज सपोज दैट 2024-25. ठीक है. तो ये आपका करंट है, दिस इज योर करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. करंट आपका फाइनेंशियल ईयर. प्रीसीडिंग मींस आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24. तो अगर इस आपका इस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 182 डेज आपका इंडिया में रहा या इससे ज्यादा आपका इंडिया में रहा है, सो ही विल बी कैटेगराइज्ड एज रेजिडेंट. ठीक है. एक आपका ये है, और ये है आपका और. ठीक है. यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता जाता है आपका एंड और के उसमें. ठीक है. तो एक तो आप या तो इसके हिसाब से, दूसरा if an individual in India for at least 365 days in last 4 financial year. ठीक है. तो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर मींस आपका 23-24. ठीक है. प्लस मतलब 364 डेज वाला क्या होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24. ठीक है. इसके पहले आपका 22-23, आपका 21-22 एंड आपका 2021. तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 365 दिन इंडिया में रहा है तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, रेजिडेंट आपका कहलाएगा. सो दिस कंटेंट ये आपका, अगर आप अपनी मैकमिलन की बुक खोलेंगे तो वहां पे थोड़ा सा मतलब पुराना डेट के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि बुक प्रिंटिंग पहले का था. ठीक है. तो उसी को आप इस तरीके से भी आपका रिलेट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये दो कंडीशन आपका फॉर रेजिडेंट. ठीक है. जैसे हम लोग हैं. अब नॉन रेजिडेंट के ऊपर आते हैं. ठीक है. अब नॉन रेजिडेंट पे दे अगेन बहुत सारे इफ एंड बट्स, बहुत सारे गाइडलाइंस आपको मिलेंगे. ठीक है. सो इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए एंड बी. ठीक है. ए एंड बी मींस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका 182 डेज आपका इंडिया में नहीं था. दूसरा आपका लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 364 डेज से वो आपका कम इंडिया में रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अगर उस कंडीशन में मतलब ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता, ना तो ये ना तो ये, तो वो क्या होगा, आपका एनआरआई कहलाएगा. ठीक है. सो एनआरआई आपका, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे इफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज. ठीक है. 120 दिनों के लिए इंडिया में रहा है आपका. ठीक है. एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन इज 182 डेज. पहले ये 182 दिन हुआ करता था 1920 जब इसको आपका चेंज किया गया. ठीक है. इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी नॉट 1920, देयर वाज अ लेजिस्लेशन जब इसको चेंज किया गया था. पहले ये आपका 182 डेज होता था, अभी इसको आपका 120 डेज किया गया. जैसे
मतलब प्रीवियस मींस आपका अगेन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। तो जहां पे वो आपका 120 दिन से कम रहा है, ठीक है। आपका ठीक है, इंडिविजुअल इन सॉरी इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 120 दिन आपका रहा है, पहली चीज, ठीक है, 180 डेज। सेकंड, स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 और मोर इन लास्ट आपका 4 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आपका, जैसे मतलब जैसे 2023 आपका 24 सॉरी 22 आपका 21 और 20, इन चार में वो कितना रहा है, प्लस आपका क्या हो गया, प्लस 365 डेज, ठीक है, 365 डेज आपका, ठीक है। सो एक कंडीशन आपका ये हो गया। दूसरा, एंड द टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एक्सीड ₹15 लाख, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, एनआरओ के ऊपर या एसएनआरआर अकाउंट के ऊपर, देन नॉन रेजिडेंट इंडियन विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। तो इस कंडीशन में भी उसको क्या करा जाएगा, आपका रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करो चीजों को। पहले ये दो कंडीशन है जो आपका नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे 180 डेज था, 182 डेज था, उसको उसने कितना करा आपका आपका 20 डेज। वो बोल रहा है कि अगर 120 डेज आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 में वो आपका 120 डेज इंडिया में था, प्लस पिछले चार आपका जो लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स हैं, देखो उसमें वो 365 डेज इंडिया में था, और आपका उसकी जो इनकम आपकी थी दैट इज 15 लाख, ठीक है, जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख है, उससे ज्यादा है। सो इनकम टैक्स विल कंसीडर दैट पर्सन एज अ रेजिडेंट इंडियन आपका, ठीक है। तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो आपका रेजिडेंट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। सो एज पर द अनदर कंडीशन, द इंडिविजुअल मस्ट स्टेड फॉर 4 years out of 10 previous years in India to classify as a non-resident Indians, ठीक है। तो अगला कंडीशन क्या कहता है हमारा, कि the individual must stay for less than 4 years out of 10 previous 10 years, ठीक है, in India to classify the non-resident। 10 साल में से वो 4 साल से कम इंडिया में रहा है आपका, ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें। so this was a tweak introduced in the Union Budget 20, ये भी आपका 20 का ही वो था, ठीक है, ये जो चेंज था, ठीक है, वेयर बाय द अर्लियर क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड एज 2 years इंस्टेड ऑफ 4 years एंड 180 डेज आपका इंस्टेड ऑफ 120 डेज आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा आपको इनको एक जगह पर लिख के पढ़ के समझना होगा, so that will give you more clarity, right? So इसके अलावा आपका अगर हम लोग कुछ और एरियाज की बात करें, जैसे डीम्ड रेजिडेंट, ठीक है। सो आपका द पर्पस फॉर द इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पे कौन, एन एनआरआई हु इज नॉट अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ any country and has more than 15 lakh income in India earned from the Indian sources, तो deemed resident के रूप में उसको आपका consider किया जाएगा। The status of deemed residency is applicable only for NRI who hold Indian citizenship and applicable to PIOs, ठीक है, not applicable to person with Indian origin, ठीक है। जो पर्सन विद इंडियन ओरिजिन है उनके लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एनआरआईज के लिए जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है उनके लिए, ठीक है। सो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट RNOR, ठीक है, अगला जो कंडीशन है आपका, सो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर 9 years आउट ऑफ लास्ट 10 years, ठीक है। सो 10 में से आपका 9 साल वो क्या रहे हैं, बाहर रहे हैं, ठीक है, पहला। और should have stayed in India for less than 730 days in last 7 financial year, or person with Indian origin or Indian citizen with more than 15 lakh income earned from Indian sources stayed in India for 120 days or more than a previous financial years 365 days or more in preceding last 4 financial years, deemed resident more than 15 lakh income earn from the Indian sources, ठीक है। तो इनको हमने कैटेगराइज किया आपका एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा एज पर फेमा 1999 नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर, तो अभी तक हमने जो सारे प्रोविजंस थे वो किसके थे, आईटी एक्ट सेक्शन 6 ऑफ इंडियन आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके हिसाब से एनआरआई और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे
ये प्रोविजन है किसके, आपका फेमा एक्ट के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कोई ऐसा आपका जो बाहर रह रहा है किसी दूसरे कंट्रीज में रह रहा है बट इंडियन सिटीजन है, सो ही विल बी कैटेगराइज्ड एज आपका एनआरआई, ठीक है। सो उसको हम लोग आपका एनआरआई की तरह आपका कंसीडर करेंगे, फर्स्ट जो आपका रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग सेकंड की बात करें, ठीक है, इंडियन सिटीजन हु प्रोसीड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और for carrying on business or vocations or for any other purpose in circumstances indicating indefinite period of stay outside India, ठीक है, तो इसको भी हम लोग नॉन रेजिडेंट पर्सन आपका एनआरआई की तरह ट्रीट करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हुए हैं या अदर्स उस कैटेगरी में। इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट विद फॉरेन government or government agencies or international organization like IMF, World Bank and others, वो भी official of central and state government and public sector undertakings depute abroad on the assignment with foreign governments, agencies, organizations or posted to their own office including Indian diplomatic mission abroad, ठीक है। So a person resident outside India who is, सॉरी हमने थोड़ा सा आपका गड़बड़ किया था, ठीक है, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे ये कुछ एरियाज हैं आपका, ठीक है, जैसे लाइक हिल नॉट, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे लेट्स से यू आर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यू आर पोस्टेड इन सम अदर कंट्री, सो यू विल बी कंसीडर्ड एज आपका इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो हम उनको क्या करेंगे, आपका इंडियन सिटीजन की तरह कंसीडर करेंगे। या जैसे कोई आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के अंदर आपका काम कर रहा है, या अगर कोई वर्क या अदर्स उन सब के लिए गया, सो दैट इज द वन आपका, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, करेक्ट दिस। बी आपका अगर हम लोग बात करें, अब इसके अलावा others are generally categorized as non-resident Indians, NRI. A person with Indian origin is one who is citizen of India, citizen of any other country other than Bangladesh and Pakistan or such other country as may be specified by the central governments satisfying the following conditions, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, PIO is one who is citizen of any other country, जिसको हम लोग आपका रेजिडेंट में कंसिडर करेंगे, हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपका, जहां से ये है पहला। दूसरा, हु बिलोंग्स टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, ठीक है। सो क्या कह रहा है, हु बिलोंग्स टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे आपका जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर है या अदर्स, ठीक है, तो जो हमारे पास आपके यहाँ भी, वो भी इंडियन सिटीजन में आपके कहलाएंगे। इसके अलावा हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन अ क्लॉज ए एन बी आपका, जो हमने पहले पढ़ा था। हु इज अ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ foreign origin of a person referred to a clause A, B and C आपका, ठीक है। तो ये these will be as per FEMA Act, these are there, मतलब वो अगर बाहर रह भी रहे for any reason, ठीक है, so they'll be considered as citizen of India, ठीक है। और वो आपका PIO के अंदर आपका ये जो conditions हैं वो जो इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनआरओ बैंकिंग का। हाँ, ये भी कई बार वो आपको इस तरीके से पूछ लेता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इनको एटलीस्ट कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट विल हेल्प यू, राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे एनआरआई बैंकिंग के, दैट इज टाइप ऑफ एनआरआई अकाउंट। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स, वन इज एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, another one is NRO accounts, then आपका FCNR accounts and non-resident rupee account, SNRR accounts, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से इनको ब्रीफ करता हूँ। NRI account is, let's say there is a person called Mr. Ram, ठीक है, so who is currently NRI, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हमारी रूल्स के हिसाब से क्या है आपका NRI, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या अदर्स भी एक्ट, फेमा एक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये क्या है आपका एनआरआई है। सो नाउ इफ यू वांट टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडियन बैंक्स, सो लेट्स से ही इज लिविंग इन यूएस, ठीक है। राम आपका कहाँ पे रह रहा है, यूएस में रह रहा है, ठीक है। और इसकी अर्निंग किस में है, डॉलर में। ही इज अर्निंग सपोज दैट $50,000 पर मंथ, ठीक है,
50,000 के डॉलर्स आपके पर मंथ के इसके अर्निंग है। अब इसने एक इंडियन बैंक का आपका या आपके बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन किया, जहां पे ये जो फॉरेन करेंसी आपका, ठीक है, यहाँ की जो अर्निंग है, जो यूएस की अर्निंग है, उसको ये आपके साथ मेंटेन कर रहा है इन इंडियन रूपी। इट्स अ रूपी अकाउंट, ठीक है। तो देखो, राम की आपका जो यूएस की अर्निंग है दैट ही इज मेंटेनिंग विद योर बैंक। सो योर बैंक, अब मतलब वो आपका क्या हो रहा है, फॉरेन अर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। सो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स के नाम से हम लोग इसको रखेंगे, इट विल बी इन रूपी अकाउंट्स ओनली, ठीक है। दूसरा आपका एनआरओ अकाउंट्स, ठीक है। एनआरओ अकाउंट्स आपका क्या है, सपोज दैट राम का सपोज दैट ही ओन अ हाउस इन इंडिया, ठीक है, राम का एक घर है इंडिया में, एंड फ्रॉम दिस ही इज गेटिंग रेंट सपोज दैट रुपीज 1 लाख पर मंथ, ठीक है। सो 1 लाख पर मंथ का इसको रेंट मिल रहा है। सो टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर इनकम, उसने आपके बैंक के साथ अकाउंट ओपन किया, दैट अकाउंट इज नोन एज एनआरओ अकाउंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स, अगेन इट इज अ रूपी अकाउंट, ठीक है, ये भी आपका रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है, ठीक है। तीसरा आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, ठीक है। सपोज दैट राम हैज सम सेविंग, इसके पास आपका कुछ सेविंग्स थी, ठीक है। सपोज दैट इसकी सेविंग्स में आपका 1 लाख डॉलर्स इसके पास थे, ठीक है, ठीक है, 1 लाख डॉलर्स इसके पास आपके थे। तो इसने आपके बैंक के साथ एक एफडी खुलाया, ठीक है, एक काइंड ऑफ एफसीएनआर इज इक्वल टू एफडी, आपका फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आपका ये काम करता है, बट इट इज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये किस में होगा, आपका फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये आपका एफसीएनआर अकाउंट। अब अगला SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, ठीक है। इट इज जैसे राम इज रनिंग सम बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, जैसे ये आपका आपका राम एंटरप्राइज इंडिया में चला रहा है, ठीक है। सो एक बिजनेस भी आपका चला रहा है। सो टू मेंटेन अदर ट्रांजेक्शन्स और जो भी एक्टिविटीज आपकी हो रही हैं, वहां पे इसने फंड ट्रांसफर करेगा कहां से, आपका या तो यहां से या फिर आपका यहां से, दीज आर टू अकाउंट्स जिससे ये आपका यहां पे कर सकता है। एंड द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज 7 years ओनली, ठीक है। 7 साल तक आपका ये इसको रन कर सकता है, चला सकता है, ठीक है, एज पर दी एसएनआर अकाउंट रूल्स, ठीक है। तो एसएनआरआर अकाउंट्स, अब देखो ये इट्स अ रूपी डोमिनेटेड अकाउंट, ठीक है, ये आपका किसमें है, रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स है। एंड यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन कहाँ से हो सकते हैं, मतलब राम कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट्स टू योर टू हिज एसएनआरआर अकाउंट्स, ठीक है। ही कैन नॉट रेमिट मनी फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एसएनआरआर अकाउंट, पहली चीज। दूसरा, टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका टैक्स कहाँ पे होगा, उसकी होम कंट्री यूएस में, इस पे टैक्स आपका होम कंट्री यूएस में, ठीक है। एनआरओ अकाउंट्स इन आपका एसएनआरआर अकाउंट्स के अंदर जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी दैट विल बी एज पर इंडियन और इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसमें वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार वो आपको इन्हीं से रिलेटेड, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम दे आस्क यू द फीचर और आपका अमाउंट रेमिटेंसेस, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और इवन आपका पेट्रिएशन एंड रीपेट्रिएशन बेसिस, आपका जैसे ये इनकम आपका है जनरली, ये इट इज फुली पेट्रिएशन बेसिस, मतलब ये इस पैसे को वापस ले जा सकता है, इस पैसे को वापस ले जा सकता है, ठीक है। आपका इस पैसे और इसमें इसमें आपका कुछ लिमिट्स होंगे, इसमें कुछ आपका लिमिट्स होंगे, ठीक है। चलो, तो पहला आपका एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट्स कैन बी ओपन एंड मेंटेन बाय एनआरआई with earning originating from the perspective individuals country of the residence, ठीक है। जैसे राम जो आपका कहाँ पे रह रहा था, यूएस के अंदर, बट सेल बी हेल्ड इन इंडियन इंडियन डिनोमिनेशन, मतलब आईएनआर के अंदर। तो इट इज राम इनकम फ्रॉम यूएस एंड ही इज मेंटेनिंग एनआरई अकाउंट विद योर बैंक इन आईएनआर रुपीस के अंदर। एनआरओ एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन विद इनकम earned from within India and shall be held in the deposit account in an INR denominations. The source of income can either be rent, dividend or any other source, ठीक है। तो उसकी जैसे हमारी रेंटल इनकम थी। FCNR accounts, ठीक है, FCNR accounts facilitate deposits made by NRI or a person with Indian origins. NRI or POI can make these a deposit in currency of their country of the residence and shall be held in the account in any one of the
फॉरेन करेंसी प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई, ठीक है। जैसे मतलब जो आपका परमिसेबल करेंसीज है, ठीक है, जिसमें आज के डेट में मोस्ट ऑफ करेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो फॉरेन की अर्निंग है उसको एज अ एफडी की तरह वो हमारे साथ मेंटेन कर। अब आता है आपका एसएनआरआर अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज पे योर अटेंशन, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सो एसएनआरआर अकाउंट्स, तो यहाँ पे जो कंडीशंस आपकी हैं वो क्या क्या हैं। सो एनी पर्सन resident outside India, that means NRI, who has a business interest in India may open special non-resident rupee accounts with an authorized dealers bank to carry out genuine transaction in rupee that do not violate the provision of the act, rule and regulation made thereunder, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पहला। अब कहाँ कहाँ पे यूज होगा, फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला, द बैलेंस इन SNRR अकाउंट शैल बी एलिजिबल फॉर रिपेट्रिएशन, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला पार्शियली इट इज फुली रिपेट्रिएशन, सॉरी, ठीक है। तो मतलब जो उसने वहां पे ट्रांसफर किया, बिकॉज यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स आ रहा है, ठीक है। सो इट इज, ये दोनों भी आपका रिपेट्रिएशन पे काम करते हैं, सो इट इज ऑल्सो ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। मीन्स जो आपका राम है वो उस पैसे को निकाल करके यूएस वापस ले जा सकता है एनी टाइम, ठीक है, पहली चीज। ट्रांसफर फ्रॉम एनी एनआरओ अकाउंट्स टू एसएनआरआर अकाउंट आर प्रोहिबिटेड, ये चीज मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। यू कैन नॉट रेमिट मनी इन योर एसएनआरआर अकाउंट्स फ्रॉम योर एनआरओ अकाउंट्स, यू कैन फ्रॉम एनआरई एंड एफसीएनआर, ध्यान रखें इन बातों का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ट्रांजेक्शन इन एसएनआरआर अकाउंट विल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इन इंडिया बिकॉज ही इज रनिंग दैट बिजनेस इन इंडिया, तो जो इनकम टैक्स लॉज है वो लागू होगा। एसएनआरआर अकाउंट मे बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट rupee account or the account when the account holders becoming a resident। अब जो राम आपका एनआरआई था, 2 साल बाद वो इंडिया में आ गया, परमानेंट रेजिडेंट हो गया, तो ये आपका रुपी अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओपनिंग SNRR अकाउंट बाय पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज नेशनल्स एंड एंटिटीज incorporated in Pakistan and Bangladesh is subject to RBI permission। तो अगर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आपका इंडिया में SNRR अकाउंट ओपन करा है, सो दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI, ठीक है। इसके अलावा SNRR अकाउंट कैन नॉट बी हेल्ड मोर देन 7 years। आफ्टर 7 years from the date of account opening no operation are permitted in the account itself, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपका जो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रख लेनी है, क्योंकि इन्हीं के बीच में दिल लाइक पिछले 2 एग्जामिनेशन में बार बार वो ये आपका करस्पॉन्डेंट सॉरी एनआरआई बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता आ रहा है और हर साल पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सो फैसिलिटीज टू एनआरआई, थोड़ा सा फैसिलिटीज एंड पार्ट आपका। एनआरआई कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन कंपनीज on repatriation basis or non repatriation basis, ठीक है। repatriation and non repatriation means जहां पे जैसे राम was our NRI, repatriation means वो पैसा वापस अपनी कंट्री ले जा सकता है, non repatriation में there are some restrictions आपका, ठीक है। basis direct investment in shares debentures offered by companies or under portfolio investment schemes, investment in secondary market through a recognized stock exchange। NRI can also invest in securities other than shares in convertible debentures आपका, ठीक है, जैसे FDI वाला होता है वैसे ही आपका, ठीक है। So investment in shares in securities, investment by NRI have been broadly categorized into 2 areas। One is on repatriation basis, another one is non-repatriation basis, ठीक है। So when proceed of investment or sale are transferred to the home country from where the investment was made, it is called repatriable investment। or proceed of the investment of money are not allowed to transfer to the home country, that is known as non repatriable investment, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन भी आपको मिल गया, तो आई होप आप सबको 100% क्लियरिटी मिल गया होगा। सो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस फॉर एनआरआईज, तो देयर आर सम एरियाज जहां पे बीइंग एन एनआरआई यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दोस पर्टिकुलर एरियाज। कौन कौन से हैं? सो फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड फॉर एनआरआई। पहला, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन इन फार्म हाउसेस, dealing in real estate activities, commercial properties,
ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जो सोसाइटीज बनती है ना जहाँ पे आपका टीडीआरस यूज होते हैं, ठीक है, लाइक दे कैन सेल टू समवन एल्स इन अदर्स, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड गवर्नमेंट लिंक स्कीम लाइक एनएससी एंड अदर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, शॉर्ट सेलिंग इज आल्सो प्रोहिबिटेड फॉर दीज पर्टिकुलर वन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है, जो आपका एरियाज। ओके, सो दिस इज इट। तो गाइस ये आपका एनआरआई, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई बैंकिंग, आई होप सबको समझ में आया होगा। सो विद इन 54-55 मिनट आई ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर वन, एंड दिस इज लाइक फॉर JIB व्हाट आई डिड कि जो जितना रिक्वायर्ड कंटेंट है उतना कराया, मतलब समरी या दस वहाँ पे हो सकता है, बट CAIB इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। तो आप लोग देख रहे होंगे हर एक सेशन का लेंथ इट इज अबाउट 1 आवर्स। पहला 1 आवर 30 मिनट गया था, दूसरा it was within 1 hours, third one is again within 1 hours. Believe me guys, if you are going through this particular content, आने वाले एग्जामिनेशन में देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट आपको ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन अप्रोच मी थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे लिख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर PDF ऑल्सो, तो जहाँ से आपके लिए रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार CIB का पेपर थोड़ा इजियर साइड में था, बट इस थॉट में मत रहिएगा, ठीक है। सो मेरा सजेशन होगा बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, और ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाले समय में इफ यू गो फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशंस, बिलीव मी आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।